اور وہی پوری ہو جائے تو پھر بات کیا کہنے، وارے نیارے ہو جاتے ہیں. ایک بریک، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور خواہشات کی بڑی ہم بات کر رہے تھے. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ خواہش کس کی پوری ہوئی ہے، اور آپ آئی ایم شیور آج رش کریں گے کہ اوہ خواہشیں ایسے پوری ہوتی ہیں تو کیا کہنے. کاش، کاش کے بعد ایک ایکسکلیمیشن مارک بھی آپ کے ذہن میں ضرور آئے گا، ضرور آئے گا. اور وہ اس وجہ سے آئے گا کیونکہ ابھی ہم آپ کو جو ویڈیو دکھانے والے ہیں اسے دیکھ کے آپ کو شاید کچھ اندازہ ہو. ویڈیو دیکھنے کے بعد جب ہم واپس آپ سے ملاقات کریں گے تو ہم مہمان حضرات جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وش گرانٹ کس نے کی ہے کچھ آپ کو آئیڈیا ہے اس بارے میں، اور وش تھی کیا، اور جو بچے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جن کی ایکچولی کچھ خواہش تھی اور دل میں انہوں نے سوچا ہوگا بچپن سے مگر اندازہ ان کو نہیں تھا کہ ان کی خواہش پوری ہو جائے گی، جب پوری ہوئی تو آج کس خوشی کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آپ کی ملاقات ان سے کروائیں گے آفٹر دس ویڈیو. That's all right. I think بہت ساری اچھی ہے. باڈی گارڈ تو بہت اچھی ہے. دبنگ بھی بہت اچھی ہے. اب نا دبنگ فائٹنگ تو دبنگ کا جو ہے نا ایک میں ڈائلاگ پوچھنا سیدھی کا میں ڈائلاگ بولوں گی اور اس سے پہلے جب ڈائلاگ تو وہ آپ مجھے بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ مجھ سے ایک آسان کرنا کہ مجھ کو تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا تھا، پیار سے لگتا ہے. اب اس سے پہلے کا ڈائلاگ آپ بتائیں کیا تھا؟ کیا تھا وہ؟ پیار سے دے رہے رکھ لو ورنہ تھپڑ مار دو. کیا بات ہے جی. کس کی ملاقات ہوئی ہے سلمان خان سے؟ یہاں ہمارے پاس مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے آپ کے جانے مانے اور میک اے وش فاؤنڈیشن کے حوالے سے تو آپ ان کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. مرزا اشتیاق بیگ صاحب موجود ہیں، فاؤنڈر پریزیڈنٹ میک اے وش پاکستان اینڈ وائس چیئرمین آف بیگ گروپ آف کمپنیز. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. کیسے ہیں آپ سر؟ I'm fine جی، شکریہ بہت. اور آپ کے کالمز کے بارے میں نے انٹروڈکشن میں کچھ نہیں کہا، لیکن آج کیونکہ ہم میک اے وش کو کانسنٹریٹ کریں اور اتنی بڑی اور اتنی پیاری وش، اوہو. نصرت سب سے پہلے تو پی ٹی وی کا بہت بہت شکریہ اور ویئرس کو بھی میں سلام کہتا ہوں. اور سب سے پہلے کہ آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا، میک اے وش کو یہ موقع دیا. اٹ واز اے ویری یونیک وش. جیسے آپ کو پتا ہے کہ ادارہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو وہ بچے جو جان لیوا مرض میں مبتلا ہوتا ہے ان کی انر موسٹ وش کو پورا کرتا ہے. اور یہ ہماری پہلی انٹرنیشنل وش تھی جو ہم نے یہ گرانٹ کی ہے. اور پی آئی اے کا اس میں ہمارے ساتھ تعاون تھا اس کے اندر. یہ میں تعاون کے بارے میں ذرا انٹروڈکشن سب کا کرا دوں تاکہ پھر آپ سب کا رول ڈیفائن کر سکیں. بالکل برابر میں جن کی وش تھی، اوہو دیکھیں کتنی خوش ہیں حبیبہ رضوان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہو. آج ایسے لگ رہا ہے عید ہے یا شادی ہے یا کچھ ہے، جوڑا ایسا ہے، خوشی ہے. کس بات کی خوشی ہے اتنی؟ سلمان خان سے مل کے آئے. مل کے آئے ہیں. اچھا آپ مجھے سچی سچی بتانا کہ کیسی ملاقات ہوئی، وہ ویسے کیسے تھے؟ ابھی تھوڑا ویڈیو میں تو بڑا مسکرا رہے تھے، اچھے سے بات کی تھی، لیکن جب آپ نے ان کو ڈائلاگ بول کے بتایا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. ابھی تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں نا، فوراً بتا دو گی تو سب کا سسپینس ختم ہو جائے گا. ساتھ ہی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انور عادل صاحب، چیف پائلٹ ہیں اور وش گرانٹنگ سیریمنی میں آپ کے ساتھ موجود تھے کیونکہ پی آئی اے کی طرف سے یہ اسپانسر کی گئی ہے وش. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہم نے کوشش یہ کی کہ وش فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے اور پی آئی اے لک آفٹر کرے اپنے لوگوں کو، جو ایسے بچوں کو جن کی وش ہو سکتا ہے زندگی میں پوری نہ ہو لیکن ان کو ہم وہاں تک لائیں، جس میں ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ان کو پروموٹ کریں. انیشیٹ تو ہو چکا پی آئی اے کی جانب سے اور انہوں نے کہا کہ پہلا انٹرنیشنل وش ہے تو اب تو لائن لگ جائے گی. یو آر پریپیئرڈ فار دیٹ ٹو؟ ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو انشاءاللہ بیکنگ کرتے رہیں گے. اس میں پی آئی اے کو بھی میرا خیال ہے لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ناٹ ان ایئر بلکہ گراؤنڈ پہ بھی ہم اپنے لوگوں کی خدمت کرنا جانتے ہیں اور کریں گے. بڑا اچھا عزم ہے اور ہماری دعا ہے کہ یہ مینٹین رہے. ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد انس، جنہوں نے اسٹائل ایسا دیا تھا کہ کیا بات ہے. اسٹائل دیا اس لیے تھا کیونکہ جیسے چلتے ہوئے آئے اور جو انہوں نے چشمہ تو آپ نے دیکھا نہیں ہے، ذرا سا تھوڑا سا
टेढ़े हो ताकि तुम्हारा चश्मा तो नजर आए। ओहो, ये तो खड़े हो गए, ये देखिए चश्मा इन्होंने पीछे लगाया हुआ है, पूरा ये सलमान खान स्टाइल में यहाँ मौजूद है, घड़ी वड़ी ब्रेसलेट भी वैसे पहनी हुई है। कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सलमान खान आपको बहुत पसंद है? जी बहुत पसंद। कितने पसंद है? अब ये तो बता नहीं सकता। हाँ, ये नहीं बता सकते, अल्फाज ही नहीं है। अल्फाज ही नहीं। हमेशा से सोचा था सलमान खान से मिलना है? जी सोचा था बस, लेकिन मेका विश पाकिस्तान और पीआई के तावन की वजह से चीज पूरी हो गई और उनसे मिल लिया। यकीन आ रहा था जब इश्तियाक साहब ने इन सब ने आपको बताया था कि हम मिलने जा रहे हैं, यकीन आ रहा था आपको? ख्वाब था एक के मिलेंगे और ऐसे ही लग रहा था कि यार अभी भी पता नहीं सच में मिल पाएंगे। सच में मिल पाएंगे, वो टाइम दे ना दे क्या हो, है ना, ये लग रहा था। मिलने के बाद के एहसास थोड़ी देर में। अब हम जी अपने लेफ्ट पे टर्न होते हैं। ओह हाउ कम इतना चेंज, अभी तो सही था। हैं मोहम्मद शहरोज मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आपने भी फिरोजा पहन लिया उनकी तरह है? ये उन्होंने दिया आपको? मैंने खुद लिया है कॉपी करके? वाह भाई, क्या कॉपी हो तो ऐसी हो। शायद आपने नोटिस किया उस वीडियो में। और ये इन्होंने ब्रेसलेट यहाँ पर पहन भी लिया। ठीक ठाक है आप? जी। कोई अच्छी सी बात आज आपने मुझे सलमान खान के बारे में बतानी है जो वीडियो में देख के पता नहीं लग रही है। जी वो उन्होंने अपनी शूटिंग के बीच में हमें टाइम दिया, आधा घंटा हमसे बात की, हम हमारे साथ मजाक किया, हमने उनसे बात की और हमने पिक्चर्स ली उनसे, हमने डायलॉग उनके बोले। आपने भी कोई डायलॉग बोला था? जी। अच्छा, कौन सा? मैंने बोला था जिंदगी में कभी 3 चीजें कभी वैसे ही बोलो ना जैसे सलमान खान ने बोला। जिंदगी में 3 चीजें कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आई मी एंड माई सेल्फ। वाह 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 वाह, वो तो आप जरूरत भी नहीं है अंडर एस्टिमेट करने की, इतने बड़े बड़े काम करके ये लोग आ गए, आप कौन अंडर एस्टिमेट करेगा तुम्हें। एंड लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट हमारे साथ विश कोऑर्डिनेटर एंड वॉलंटियर, इन बच्चों के साथ काफी कंपनी रही इनकी, जाहिदा सरवर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है जाहिदा? आप तो काफी, आपने अपना पोस्चर मेंटेन किया हुआ है अभी। लेकिन मुझे बताओ जब ड्यूरिंग द फ्लाइट या जब ये पता चला था कि ओह अब मैं सलमान खान से मिलूंगी, तो कितनी बटरफ्लाइज हुई थी? एक्चुअली ये बात मशहूर हो गई थी कि बच्चों से ज्यादा वॉलंटियर्स एक्साइटेड। अच्छा। बट इट वाज फन लाइक बच्चों के साथ जाना और इन लोगों की खुशियां देखना, फिर खुद भी ऑफ कोर्स इतना बड़ा एक्सपीरियंस करना, इट वाज ऑल फन ओवरऑल। अच्छा, लेकिन आपने अभी तो बड़ा फॉर्मली जवाब दिया है। मुझे जरा सच्ची सच्ची कहानी बताइएगा, वो जो आधा 1 घंटा आपकी जिंदगी में अब कहीं रकम हो गया है ना। एग्जैक्टली। तो उसके बारे में मुझे अपनी जबानी आपने ये स्टोरी बतानी है। इश्तियाक साहब, बैक टू यू। अब आप बताइए कि इसका क्या रोल रहा, ये आपने प्लान किस तरह किया, क्योंकि इनकी विश होती है, उसके बाद आप उस विश को ओन करते हैं एंड देन यू ट्राई फॉर इट, यू स्ट्रगल फॉर इट। तो कितना मुश्किल या कितना आसान रहा? बड़ा ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें विश कोऑर्डिनेटर का काम ये होता है कि प्लान करना इस विश को। तो जब ये बच्चों की एक तो सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि पाकिस्तान में बड़ी यूनिक विशेज आ रही हैं। मैं अभी मेक ए विश इंडिया से मिलके आया हूँ, उनकी 70 to 80% विशेज हैं टू हैव समथिंग, हमें कुछ चीज चाहिए। हमारे बच्चों की जो विशेज हैं इतनी यूनिक आ रही हैं कि इंटरनेशनल वाले बड़े परेशान हैं। जैसे ये विश जब आई कि जी मुझे सलमान से मिलना है, और 1 साल तक ये लोग हमें परस्यू करते रहे कि कब चलना है और मिलना है। फिर हमने सलमान खान साहब से कांटेक्ट किया जी मेक ए विश इंडिया के थ्रू। एंड आई विल टेल यू वन थिंग कि सलमान खान को पाकिस्तान में लोग ये जानते हैं कि वो एक बहुत ग्रेट एक्टर है, बट ही इज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग एज वेल। इस आदमी का सोने का दिल है। इसने हमें कॉल किया और ये कहा कि मुझसे मत पूछें मेरे पास कब टाइम है, इन बच्चों की कब तबीयत बेहतर है बताइए, मैं इनको इन्वाइट कर रहा हूँ। 1 आवर स्पेंड विद देम, और जिस तरह इनको हक कर रहा था, वो प्यार कर रहा था, इन्हें तोहफे दी हैं, अपनी शूट पे फिल्म की बुलाया है। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बतलाऊंगा कि पाकिस्तान को भी इस विश से बहुत एजाज मिला है। आमतौर पे इंडिया के जो बड़े स्टार्स हैं वो ये कैप्स वगैरह और अजरक वगैरह वो करते हैं क्योंकि वहाँ पे कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। और हमने जब उसको कहा कि जी हम सिंध से आए हैं और ये हमारी रिवायत है, तो उसने बोला जी बिल्कुल। तो वो हमने जनाब 1 नहीं 2 अजरक पहनाई और टोपी पहनाई, और इतनी उस पर सज रही थी। और उसके बाद अखबारों ने कहा कि जी ये तो साईं वडेरा है। और फिर वहाँ पे जो सक्सेना है, मतलब
ठाकरे, शिव उनकी सेना पार्टी है ने ये। बयान दिया कि जी इसको सिंध बाल में होना ठाकरे, चाहिए, हमें जी। इसकी जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसने इन फोटोग्राफ्स को जो अजरक और जी, जी। सिंधी टोपी के साथ थे अपनी फेसबुक पे डाला है, और 9 मिलियन व्यूअर्स हैं उसके जो अच्छा। दुनिया में उसको देखते हैं। एंड ही इज सो प्राउड ऑफ दिस। एंड इंशाल्लाह उन्होंने हमसे कहा है कि मार्च में ही सेट की इज कमिंग हियर पाकिस्तान। एक बार जब वो छोटा सा था अपने भाइयों के साथ आया था, ओके। और एक दिन उन्होंने जो था वो हॉक्स बे पे स्पेंड किया था, तो ही सेट कि मेरी अभी तक वो Memory यादें है। हैं जी हॉक्स बे की। एंड ही सेट असल में हुआ ये कि ये यहाँ से कुछ 6 बच्चों का एक लेटर लेके गए थे, जिसमें हमारे दूसरे जो बच्चे थे जिनको डॉक्टर्स ने अलाउ नहीं किया, ओके। उनकी कीमोथेरेपी वगैरह हुई थी, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि सलमान साहब हम आना चाहते थे बट हमारी सेहत ऐसी नहीं है कि हम आ सकें। अल्लाह ने आपको सेहत दी है, आप तो हमसे मिलने आ सकते हैं। एंड आप यकीन करें कि उसकी आंखें वेट हो गई। यानी से टेल दिस किड्स कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उनसे मिलने यहाँ आऊंगा। बाकी ये He's a great, देखकर ही he's a आइडिया great होता है। man जी, he's a great man जी। अच्छा, और जब वो आएंगे तो आपने और भी वादे किए हैं। बिल्कुल जी, आपके शो में सबसे पहले होंगे। हाँ, दिस इज माय ये प्रॉमिस। ऑन एयर बात इन्होंने कर दी है। अब मार्च में हमारे जितने व्यूवर्स हैं ना इश्तियाक साहब, नहीं, इनकी तो promise। विश आपने पूरी की है, बट यू ओन देम टू। तो हमारे नहीं, व्यूवर्स जो हैं आपकी विश भी मैंने है ग्रांट ना, करनी है। हमारी विश, एवरीबॉडी, हमारी भी विश और इनकी भी जी विश, हाँ, ये भी ग्रांट आपने करनी है। definitely। अच्छा जी हुबैबा, अब मुझे बताओ ना कि क्या हुआ जब प्लेन में बैठे, तो कैसा दिल हो रहा था कि है बहुत कितनी अच्छा लग रहा था। मैं फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रही हाँ, थी plane में। कितनी देर में पहुंची तुम इंडिया? 1.5 घंटे में। सही, फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोग होटल में गए, फिर 6 o'clock हम सलमान खान से मिले और मैंने उनसे एक डायलॉग भी अच्छा बोला। पहले रुको, डायलॉग अभी इतनी तेजी में कहाँ जा रही हो? पहले तुम वहां पे पहुंची जहां उनकी शूट हो रही थी, तो पहले खड़े होते हैं ना, वो आ रहे होंगे, कहीं से आ रहे थे, तुमने देखा कि सलमान खान आ रहे हैं, क्या क्या फीलिंग हो रही थी? बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी और मैंने जाते ही उनको हक कर लिया। अच्छा, आते ही कोई तारुफ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, नाम भी नहीं बताया? अच्छा, फिर अपना नाम बताया और उसके बाद उनसे बातें थोड़ी सी की। क्या बातें की? मैंने अपने डायलॉग वगैरह बोले ये सब। हाँ। उस और डायलॉग पे उन्होंने क्या बोला? वैसे तो उनकी थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी, लेकिन मैं चाहती हूँ फिर भी, आपने बोला था ना कि आप इससे पहले का डायलॉग हाँ, बोले। मैंने बोला था थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। तो उसके बाद उन्होंने डायलॉग बोला था, प्यार से दे रहा हूँ, रख लो ना थप्पड़ मार के भी दे सकता हूँ। अच्छा, क्या बात है भाई तुम्हारी। तुम्हें ये डायलॉग याद था या उस वक्त तुमने प्लान किया था कि सलमान खान मेरे सामने आएंगे तो ये डायलॉग आज मैं बोल दूंगी? है मैं मतलब कि कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मैंने कहा था कि ना बस जो मैं बोलूंगी, और मैं इतनी ज्यादा एक्साइटिंग थी ना, और मैंने पहले से प्लान करा था मैं सब कुछ बोलूंगी। सब कुछ बोलोगी? वाह भाई। और जब विश पूरी हो गई, तुम्हारी मुलाकात हो गई, तो क्या जब टाइम खत्म हो रहा था उनसे मुलाकात का, तो क्या फीलिंग हो रही थी? कि नेक्स्ट टाइम वापस आएंगे तो शायद मिलना मिलाना हो या ना हो, तो ऑटोग्राफ वगैरह सब दे लिए थे। और फिर ना इतनी एक्साइटेड थी कि ना फिर सब ऑटोग्राफ वगैरह ले लिया। उसके बाद हम लोग ने कहा कि ना सलमान भाई हम ना नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप जरूर हमसे मिलेगा। और ना उन्होंने बोला कि ना अगर हुआ तो जरूर मिलो। जरूर। ये कुछ चीज शर्मा रहे हैं, ये इतनी शैतान है। उससे कहने लगी कि आपकी बॉडी बहुत खूबसूरत है, मुझे अपनी बॉडी दिखाएं। ओह माय गॉड। अच्छा, और वो सलमान भी वो 1 सेकंड में शर्ट उतारना शुरू कर देता है जी। हाँ। फिर मैंने उसको रोका और इन्होंने जनाब बहुत शैतान है ये। और ये घड़ी जो आप देख रही हैं सलमान साहब ने इनको दी है। अच्छा, और ये जो ड्रेस पहनी है ना, ये कोई सोनाक्षी जो है, ये उसका ड्रेस है ये इनफैक्ट। ये उनका ड्रेस है? हाँ, सोनाक्षी मीन्स कि ये बनी थी, गेटअप किया था इन्होंने। अच्छा, हाँ मैंने सोचा सोनाक्षी का इतना हाँ। छोटा कैसे हो गया ड्रेस? खैर आ गया ना तुम्हें, या तो वो छोटी सी है या तो फिर ये बड़ी सी है, क्या हुआ ये? खैर अच्छा, इसी तरह से उन्होंने अपने ड्रेस पहना था। तो ये आपका ड्रेस किसने बनाया? ये मतलब कि अब्बू लाए थे। अच्छा, लेकिन इसी तरह का उन्होंने फिल्म में पहना है? उन्होंने साड़ी पहनी थी। अच्छा, लेकिन मैं इसी तरह की रेड कलर की थी तो। अच्छा, इसी तरह का कॉम्बिनेशन था। ओके सर, आपका इन लोगों के साथ जाना, विश ग्रांटिंग सेरेमनी को देखना, ओवरऑल आपका क्या फीडबैक है? जी, पीआईए ने मेरे ख्याल है पहली दफा, मैं इनको कम्युनिटी सर्विसेज कहूँगा, इन लोगों के साथ खड़े कि हम लोग आपको स्पॉन्सर करेंगे जी, और वो बच्चे जहाँ भी जाना चाहें हम आपके साथ खड़े। आपको याद होगा कि पीआईए सोशली तो लोगों को लुक आफ्टर करती रही है, अपने हीरोज़ को जो खिलाड़ी रहे। हमारे पास डायरेक्टर्स भी बने
वसीम बारी मेरा ख्याल है